Now students, let's start today's class. Today we will study the lesson 4 of your honeysuckle book. I have just written Kalpana Chawla, although the chapter name is An Indian American in Space, Kalpana Chawla. If you have the book, you can see the title of this chapter in your book. आप book भी अपने पास रखें अगर है तो. And today we will study, you can say, we will study about the Kalpana Chawla. She was an Indian American. It is because so she was born in India and later she became the citizen of US. वो बाद में जो है अमेरिका की क्या नागरिक बन जाती है. So that is why she is called an Indian American. इसीलिए उन्हें हम जो क्या कहते हैं Indian American कहते हैं. So students, let's start studying this chapter paragraph wise. If you have the book, you can please see the first paragraph. And so many things we will learn about, we will come to know about Kalpana Chawla. Kalpana Chawla के बारे में हम कई चीजें जानेंगे. And we can also learn a lesson from her life, that how she was, even her family did not allow her to complete her education, but despite that fact she went on to become an astronaut. उनका परिवार जो उनको आगे तक केवल पढ़ने भी नहीं देना चाहता था, इसके बावजूद वो न केवल पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, बल्कि एक एस्ट्रोनॉट भी बनी. एंड ही गॉट फेम्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, सब लोग उनको आज जानते हैं. अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन अ स्पेसक्राफ्ट while the spacecraft was coming on the earth during the second mission, space mission. We will study in detail about that. And unfortunately she died during when the spacecraft got crashed और disintegrated. जब उनका spacecraft जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया और क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, वो उनकी उसमें मौत हो जाती है. So we will study all these things in detail. So let's start the first paragraph, start the chapter from the first paragraph. Kalpana Chawla says that she had never dreamed as a child, as a child in Karnal, that she will cross the frontier of space. कल्पना चावला कहती है कि जब वो बच्ची थी तो कभी भी उनके मन में ये बात नहीं आई थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं स्पेस में जाऊंगा, अंतरिक्ष में जाऊंगी, जो अंतरिक्ष की सीमाएं हैं मैं उसको पार करूंगी. Because it was enough that her parents allowed her to join the engineering college after she graduated from the Tagore School. उनके लिए इतना ही बहुत था कि उनके जो फैमिली मेंबर्स थे एक बार उनको इतना उनको आगे की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दी. ये बहुत बड़ी बात थी. इट मीन्स स्टूडेंट्स दैट हर फैमिली मेंबर डिड नॉट वांट हर टू pursue the higher education or get higher education. इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो कल्पना चावला है वो पढ़ाई आगे तक करे, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करे. लेट अलोन बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए. So after when she completed her Bachelor of Science degree and Aeronautical Engineering, जैसे ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बीएससी की डिग्री उन्होंने ली. she went for a master degree to यूनाइटेड स्टेट्स. फिर वो मास्टर डिग्री के लिए कहाँ चली जाती हैं? यूनाइटेड स्टेट्स जाती हैं. एंड लेटर she completed her degree in PhD. later she completed her PhD, वहाँ पे वो PhD पूरा करती हैं. and she also became the first Indian she completed her PhD in aerospace engineering. It is mentioned in the second paragraph of your book, students. You can see. पहले तो वो जैसे ही उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद वो यूएस जाती है, वहाँ पे फिर वो पीएचडी अपनी पूरी करती हैं. एंड शी बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमेन टू blast off from the launch pad of the Cape Carnival. The place, name of the place, it is given in the second paragraph. आप second paragraph को देखो, यहाँ पे दिया हुआ है. She became the first
first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral. Cape Canaveral. Cape Canaveral is the place in Florida. अमेरिका जो है वो फ्लोरिडा में एक जगह पे है. वहां से जैसे हमारे यहाँ जैसे आप लोग कभी सुनते होंगे कि अंतरिक्ष में जो स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं तो वो श्रीहरिकोटा से जनरली भेजे जाते हैं, जो इसरो के वैज्ञानिक वहां से. सिमिलरली जो नासा के जो साइंटिस्ट है तो वो अपना भी जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेस में भेजते रहते हैं फॉर रिसर्च वर्क, रिसर्च के काम के लिए. सो जो कल्पना चावला जो थी पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई थी. जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर है जो फ्लोरिडा में स्थित है. फ्लोरिडा एक जगह का नाम है अमेरिका में जो है. सो वो उसी रिसर्च सेंटर से जो है जो कैप कार्निवल जगह पे स्थित है वहां से उन्होंने स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, अंतरिक्ष यान भेजा गया था जिसका नाम था कोलंबिया. सो कोलंबिया में अंतरिक्ष यान का नाम होता है जिसमें वो जिससे वो स्पेस में गई होती है. So it was a really proud moment for her, and that time her family members were also present there along with the staff member of the NASA. NASA के जो स्टाफ मेंबर्स उनके साथ उस समय उनके फैमिली मेंबर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं. एंड दे चीयर्ड फॉर हर, और वो उनका उत्साह बढ़ाते हैं वहाँ पे. एज द कोलंबिया लिफ्टेड इनटू द स्पेस, जैसे वो अंतरिक्ष में जाना, जो अंतरिक्ष यान है अंतरिक्ष की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो सभी लोगों ने उनका उत्साह उस समय बढ़ाया. उनके फैमिली मेंबर भी उस समय वहाँ पे मौजूद होते हैं. सो इन दिस पैराग्राफ यू नीड टू रिमेंबर द पर्टिकुलर प्लेस. इट्स अ कैप कार्नावेल. कैप कार्नावेल एक जगह का नाम है जो फ्लोरिडा में है. आप वहां को अंडरलाइन कर लीजिएगा. फ्रॉम वेयर द सी हैज वेंट इनटू द स्पेस इन द स्पेसक्राफ्ट, वहीं से स्पेस में गई होती है स्पेसक्राफ्ट में. और स्पेसक्राफ्ट जिसमें वो गई होती है स्पेस में उसका नाम होता है कोलंबिया. उसमें भी दिया हुआ है, उसको भी आप वहां पे अंडरलाइन कर सकते हो, उसको याद कर रख सकते हो. So after this was about her education degrees. In second paragraph we came to know about her degrees. So first what she completed, she took a degree in the BSc in aeronautical engineering. BSc उन्होंने किया aeronautical engineering से. Then she went to where she went US. For what she went US क्यों गई? She went US for the higher education. She completed her PhD there. Not only she completed her PhD in aerospace engineering, but she also became the first Indian American woman, पहली भारतीय अमेरिकन महिला बनी जो कैनेडी स्पेस सेंटर से जो फ्लोरिडा कैप कार्निवल में स्थित था वहां से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई. So this was the second paragraph, students. Let's talk about the third paragraph. Third paragraph is about her US citizenship. वो वहाँ की नागरिक बन जाती हैं. Her marriage, उनके शादी के बारे में है. And apart from being an astronaut, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा what else the skills he had, उनके अलावा उनके पास और क्या सारी skills थे इसके बारे में हम जानेंगे थर्ड पैराग्राफ में. So although she was born in Karnal, Haryana, वो जो पैदा हुई थी she was born in 1962. It is not given in your text book, या आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है. So if you want to note it down, you can note it down. She was born in 1962 इन करनाल हरियाणा. करनाल जो है एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहां पे वो पैदा हुई थी. बट सी बिकेम द नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ यूएस. नेचुरलाइज्ड सिटीजन मींस स्टूडेंट्स जब व्यक्ति कहीं और जन्मा होता है, उसका जन्म कहीं और हुआ होता है और वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, उसको मिल जाती है. देन he becomes the naturalized citizen. So she also became the naturalized citizen of the USA. And she married to Jean Pierre Harrison. नाम दिया हुआ है थर्ड पैराग्राफ में, आप देख सकते हो. She married to Jean Pierre Harrison. उनकी शादी जो होती है वो किससे शादी कर लेती हैं? जीन पियरे हैरिसन से. He was also a flight instructor. Flight instructor का मतलब ये स्टूडेंट्स जो who teaches people how to operate flights. कैसे फ्लाइट्स को चलाते हैं, जो सिखाने का जो काम करते हैं उन्हीं को हम फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कहते हैं. So Jean Pierre Harrison was the flight instructor. And apart from being an astronaut, कल्पना चावला केवल एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थी, एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं थी. अपार्ट फ्रॉम शी वाज आल्सो ए लाइसेंस्ड, उनको लाइसेंस मिला था. फॉर व्हाट? लाइसेंस ऑफ शी हैज लाइसेंस फ्लाइंग द मल्टीपल एंड सिंगल लैंड एरोप्लेन्स. जो एरोप्लेन्स थे, चाहे वो एक इंजन वाले एरोप्लेन हो चाहे मल्टीपल इंजन वाले एरोप्लेन है, उनको उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला था. And she was also licensed to fly a single engine seaplanes and Gladiator. Gladiator is a small aircraft,
छोटे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें ग्लैडियर बोला जाता है. सो शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई व्हाट, शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई single and multiple land aeroplanes, single seaplanes and gladiator. And when she qualified as a pilot, जब वो पायलट बन जाती, she was also a flight instructor. वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी काम कर सकती थी, वो लोगों को सिखाती भी थी कैसे फ्लाइट उड़ाना है. लाइक हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड की तरह वो भी एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होती है. So when once she became the pilot, she started thinking about her new challenge. जब वो एक बार फ्लाइट इंस्ट्रक्टर या पायलट बन जाती है तो वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, जो मेरे आई थिंक आई शुड डू समथिंग एल्स, मुझे कुछ और करना चाहिए. So she started considering her new challenge, about her new challenge. उनके लिए जो अगला चैलेंज था उसके बारे में सोचना शुरू किया. And what was her new challenge? Her new challenge was that applying for the NASA स्पेस शटल प्रोग्राम, जो नासा का अंतरिक्ष यात्रा का कार्यक्रम था जिस अंतरिक्ष में लोगों को भेजते थे, उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अप्लाई करना का सोचा कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए. आई शुड गो इन द स्पेस, मुझे स्पेस में जाना चाहिए. सो फर्स्ट नासा हायर्ड हर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट. पहली बार जब नासा ने उन्हें हायर किया, अपने यहाँ काम पे रखा, तो उन्होंने उनको रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में रखा. They did not keep her as a astronaut. पहली बार में उन्हें एस्ट्रोनॉट का वर्क नहीं दिया गया. But later in 1964 or 1994 students, if I'm right, 1994 में she was finally given opportunity to become an astronaut at NASA. NASA में जो है उनको एस्ट्रोनॉट के रूप में काम दिया गया 1994 में. So third paragraph में हमने क्या पढ़ा? Third paragraph we studied about her birthplace. हमने उनके birthplace के बारे में पढ़ा. कहाँ पे था? करनाल, हरियाणा. And but she became the citizen of which country? US. वहाँ की citizen बन जाती है. She married to whom? किससे वो शादी की? She married to Jean Pierre Harrison. And who was the Jean Pierre Harrison? According to our textbook, this textbook, he was a flight instructor. वो कौन थे? Flight instructor थे. विमान चलाना सिखाते थे लोगों को. And apart from being an astronaut or besides an astronaut, एक astronaut होने के अलावा कल्पना चावला और भी काम कर सकती थी. And what was that? She could also fly the aeroplanes, multiple and single engine land aeroplanes. Land aeroplanes जो हवा में जाते हैं फिर आ जाते हैं. And she was also able to fly the single engine seaplanes. Single engine seaplanes भी उड़ा सकती थी. ग्लाइडियर जो एक छोटे से एयरक्राफ्ट होते हैं, शी वाज आल्सो एबल टू फ्लाई दोस ग्लाइडियर्स भी वो फ्लाई कर सकती थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी वाज आल्सो ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. एंड ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी अपने हस्बैंड की तरह. So she could do so many things. And after becoming a pilot, एक पायलट बनने के बाद she started considering her new challenge. जो अपने नए चैलेंज के बारे में सोचना शुरू कर देती है. और उनका नया चैलेंज क्या होता है? एस्ट्रोनॉट बनना. So she applied for that and finally she was given the task of astronaut in 1994 में उनको as a astronaut नासा में रख लिया जाता है. So this was the third paragraph. यही third paragraph में आपको पढ़ना था. Now let's talk about the fourth paragraph. Fourth paragraph is about her opinion. उनके opinion के बारे में. Once someone asked him that what it like being a woman in your field. जब उनसे पूछा गया कि generally the field she had chosen, जो field चुनी थी becoming astronaut बनने का, it is male dominated. Generally male जो लोग हैं, जो male category के लोग हैं, वही इस field में जाते हैं. Women the female are very not generally female are not interested in such field. इस तरह की field में females का जो है इतना interest नहीं होता है. So when she was asked that how does she feel being a woman in her field, so she replied that she never thought that she was a woman pursuing her goals and pursuing her studies. वो बताती है कभी उनके मन में आया ही नहीं कि वो एक लड़की है. जब भी वो अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, she never thought that she is a person who has come from स्मॉल सिटी एंड डिफरेंट कंट्री. कभी भी उनको ये नहीं लगा, वो कहती हैं कि मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, छोटे से कस्बे से आई हूँ, या एक अलग देश से आई हूँ. दीज थिंग्स नेवर केम टू हर माइंड. ये चीजें हैं उनके दिमाग में कभी
नहीं आती है. And she just tells that I had my dream like no others. मेरा भी एक सपना था दूसरों की तरह, and just I followed it, और मैंने उस सपने के पीछे में भागी, उसको पूरा करने की कोशिश की. And I was fortunate enough that people were I had such people around me who always supported me whatever I wanted to do. और इस बात को भी वो मानती हैं कि मैं बहुत लकी थी कि मेरे आसपास वो उस तरह के लोग थे जो हमेशा मेरा सपोर्ट किए जो भी मैं करना चाहती थी. तो फोर्थ पैराग्राफ जो स्टूडेंट्स है अबाउट हर ओपिनियन, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वुमन होना आपके फील्ड में आपको कैसा लगता है, क्योंकि जनरली जो होता है ये वुमन का फील्ड नहीं होता है स्टूडेंट बनना वगैरह. सो आई होप दैट आपको उनका ओपिनियन समझ में आ गया होगा. इट इज सो द फोर्थ पैराग्राफ इज बेसिकली अबाउट हर ओपिनियन. What how does she feel about no how did she feel about being a woman in her field. Now we will talk about the fifth paragraph. Fifth paragraph is about her first space. Remember students, it is not given in your textbook, but she had went into the two space missions. दो space mission पे गई थी. First in 1997. So we are talking about her first mission in space. पहला जो उनका स्पेस का कार्यक्रम था, पहली बार जब वो अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी कोलंबिया अंतरिक्ष यान में, तो उसी का डिटेल दिया हुआ है 5वें पैराग्राफ में. So it's about that how many days she spent in the space, कितने दिन वो स्पेस में स्पेंड की. So it's about 15 days, 16 hours and 34 minutes. You can see, you can also underline it. 15 दिन, 16 घंटे और 34 मिनट्स. And during that period they took they took the round of the earth 252 times. If I am right, you can see in that paragraph 252 times they took the round of the earth. Sorry. And they also covered the distance of 10.45 million kilometers. आप इसको डिलाइन कर सकते हो. उनकी जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट फैक्ट क्या है, हाउ मेनी डेज शी स्पेंट. सो दे स्पेंट 15 days, 16 hours, 34 minutes. How much how many times they took a round of the earth. So they took round of the earth around 252 times. And how much distance they covered. So they covered the distance of 10.45 million kilometers. And they did there were the astronauts from the country like Ukraine and Japan were also with her. जो जापान के जो एस्ट्रोनॉट हैं और यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट हैं उनके साथ उस समय थे फर्स्ट मिशन पे. एंड दे डिड सो मेनी एक्सपेरिमेंट आल्सो देयर. वहां पे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए. सो व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑफ conducting the pollinating the plants, pollinating the plants to see the food growth. Food growth को पता लगाने के लिए, food growth देखने के लिए they conducted the experiment of pollinating plants. And the second experiment they did was to test the faster stronger metals and the faster computer chips. उन्होंने जो है मजबूत मेटल्स बनाने का भी टेस्ट किया और कंप्यूटर चिप, फास्टर कंप्यूटर चिप्स भी बनाने का एक्सपेरिमेंट किया. सो यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स 3 एक्सपेरिमेंट्स दे बेसिकली डिड. फर्स्ट, pollinating plants. Why did they do such experiments? To see the food growth. Food growth का पता लगाने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट they did the test for making faster metals stronger metals and the faster computer chips. So ये 3 experiments which cost them around or you can say $50 million. और conducting all these experiments, उसका जो कीमत आप कह सकते हो उसमें जो पैसा लगा या जो पैसा खर्च हुआ वो लगभग कितना खर्च हुआ, $56 million के करीब जो पैसा खर्च हुआ. So these were the facts related to her first mission in the space. फर्स्ट जो मिशन था उनका स्पेस में, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो 5वें पैराग्राफ में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स. So now let's talk about the 6th paragraph. 6th paragraph is about tragedy that happened with her during the second space mission.
एंड दैट डे वाज द सैटरडे, उस दिन सैटरडे की रात थी एंड भारत में अराउंड इट वाज 7:30 का टाइम था. एंड सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट दैट ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी जो उनके साथ हुई थी इसके बारे में है. So that day everyone know when the news about the tragedy of the Columbia spread whole in the whole world, पूरे विश्व में जब फैली, the people of Karnal in Haryana were very shocked and in disbelief. Not people of only Karnal Haryana were shocked in the shock and disbelief, but people all around the world in a shock and disbelief. पूरे जो विश्व के लोग थे उनको यकीन नहीं हुआ कि ये घटना कैसे हो गई. And the people in Karnal spent a sleepless night, पूरी रात जागते रहे. And they glued to their television, एक word यहाँ पे आया हुआ है glued. Glued students means generally when you are glued to something, जब आप किसी चीज के glue होते हो तो you are closely you are very closely there, आप वहाँ पे होते हो to listen and see something, कुछ ध्यान से सुनने के लिए और ध्यान से देखने के लिए आप उसके करीब होते हो. So people were glued to their television sets, बिल्कुल आप अपने टेलीविजन सेट के पास बैठे रहे, with the hope that somehow all the crew member along with the Kalpana Chawla had survived. तो वो ये उम्मीद कर रहे थे कैसे भी हो जो क्रू मेंबर हैं, बाकी के जो सदस्य जो कल्पना चावला के साथ गए थे स्पेस मिशन में, वो बच जाए. So this paragraph is about that, and we will also there is also point of view of an journalist, एक जर्नलिस्ट के point of view के बारे में बात किया गया है जो आप देख सकते हो स्मॉल वहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है. So let's also talk about that, what that journalist had said about the कल्पना चावला. वो जर्नलिस्ट ने जो कल्पना चावला के बारे में क्या कहा था. So he had said that she was a heroine in a true sense. She was a heroine in true sense because it takes enormous ability to become an astronaut. उनका मानना था कि एस्ट्रोनॉट बनना जो है ये आसान काम नहीं है. It takes enormous ability. Enormous का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है, enormous means big, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी योग्यता की जरूरत होती है. आप ऐसे नॉर्मली कोई ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे. You need to know about almost everything. You need to know a lot about all things. आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, right from the biology to aerophysics to aeronautical engineering. वो कहते हैं कि बायोलॉजी से लेकर एरोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए. एंड ही एल्स फर्दर एड्स, वो आगे ये भी कहते हैं दैट इन दिस टाइम ऑफ you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Encyclopedic एक word यूज हुआ है स्टूडेंट, you can see in your book. Encyclopedic जो है एक बुक होती है जिसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, all type of information you get. So he just compares that if you want to become an astronaut, so you need to also have such knowledge. आपके पास भी ऐसी knowledge होनी चाहिए. It should be related to every sphere of human beings, or you can say all fields. It's related to all fields. वो सभी fields की knowledge होनी चाहिए आपको, तभी आप क्या है जो एक अच्छे एस्ट्रोनॉट क्या हो सकते हो, बन सकते हो. So these were the things the journalist had told about the Kalpana Chawla. So students, this was our 6th paragraph, and now we will finally study or we will see the 7th paragraph. 7th paragraph में क्या information दी गई है. So 7th paragraph is about that the achievement she had got. जो achievement कल्पना चावला ने प्राप्त किया, तो उपलब्धि प्राप्त की थी. She was that was the inspiration for the millions of young people of India. जो भारत के लाखों जो नौजवान हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन है आज ये. And she had also sent one message from space, एक स्पेस से वो मैसेज भी दी थी for the student of her college. जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी उस समय चंडीगढ़ में, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक मैसेज भी भेजा था स्पेस से, और मैसेज आप देख सकते हो बुक में दिया हुआ है. इट इज दैट the path from dreams to success does exist. वो कहती हैं कि path from dreams to success, अगर हम किसी चीज का सपना देखते हैं कि हमें ये करना है, और उस सपना देखने से लेकर वहां तक पहुंचने, उस चीज को प्राप्त करने तक का जो रास्ता है, वो कहती है कि होता है. that road or that path exist, वो जरूर है. may you have vision, भगवान आपको उस विजन दे, वो दृष्टि दे, and
मे यू हैव दैट विजन टू फाइंड इट। आपको भगवान इतनी शक्ति दे, उस दृष्टि देता कि आप उस रास्ते को क्या कर सको, बस देख सको कि मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है। एंड इट द करेज टू गेट इनटू इट, और आपको उतनी हिम्मत दे ताकि उस रास्ते पर आप क्या करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सो दिस वाज द मैसेज शी हैड गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज फ्रॉम द चंडीगढ़। चंडीगढ़ में उनका जो कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज जिससे उन्होंने पढ़ाई की थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी, उन स्टूडेंट्स को उन्होंने मैसेज ये दिया था। So students, so this was your chapter. We studied about we got some information about the Kalpana Chawla. Kalpana Chawla कौन थी, कहाँ उनका जन्म हुआ, later where did she go, कहाँ वो गई, what did she become, क्या वो बनी, whom did she marry, किससे उनकी शादी हुई, how did she died, कैसे वो मरी. So we studied all, we also got some information. We came to know about the facts related to her first mission in space. पहला जो उनका मिशन था जो स्पेस में, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की. सो दीज वर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू. If you have any doubts, if you couldn't understand anything, you can ask your question. Now I will allow you to ask your questions.